Hello, all of you. I hope you and your family are doing good. I know the times are hard, but have faith in yourself, be strong, and take care of yourself. So, today we are here for a geography class on class 12 Indian People and Economy book, that is this NCRT book. And my name is Prachi Soni. I am a geography teacher in Gandhi Senior Secondary Public School, and today we will start with this book. So, while we were in school, we already completed the first four chapters from your human geography book, that is the fundamentals of human geography, this book. So, after that, we will now start with another book, that is the Indian people and economy. How would these classes go? So we would be studying like a portion of your chapters daily, and I would message you, I would tell you that which part we are studying today. And so before watching the video, I would recommend you to please read the content in your book. Although I would be explaining uh, paragraph wise, but I would not be reading the content. So I would recommend you to please read it from your books, and then watch the video. You would be able to understand the content in a better way. So this book has is talked or discussed about Indian people. This book is specifically about India, how the Indian people, the population, migration, human development, everything, and how it affects the economy of our nation. So how it is impacting our economics. So this is, you can say that we are studying economic geography, which is concerned or which is related to Indian people in specific. So in this book, we would be studying about chapters like population growth. We already studied that what are the reasons which affects the population of any particular area. So in this case, we would be studying specifically about India. We would be talking about migration. Why do people migrate? We learned about immigration, emigration. We learned about push and pull factors. So in this also we would be dealing with migration with respect to India. And then we would be talking about human development, how human development index, what are the indicators, which states of India are more developed and which states of India are a little backwards, or what are these conditions. You will see we have human settlements, that how humans settle. There are ancient towns, medieval towns, modern towns. Then you have educational towns, areas which are used particularly for administration. For example, Delhi, your capital areas, for example, Lucknow, Haryana, Lucknow, Chandigarh, every this these places. So then we'll be studying about land resources, different type of lands which is available in India, soils, agriculture. This is a very important chapter for in terms of your competitive examinations. Then you have water resources. What are the available water resources? Groundwater, surface water, how we are utilizing groundwater, how we can conserve water in the long run. Then we would be studying about mineral and energy resources, metals, ferrous minerals, non-ferrous minerals, iron, manganese, and where is it available in our country. We would be also talking about manufacturing industries. Then we would be talking about sustainable development. What is sustainable development? All of you must know. So please uh, comment in the comment section that what do you understand by sustainable development. Then we would be talking about transport, railways, roadways, airways, everything, waterways. So how these transports helps our country and our economy. Communication, modes of communication. We will be studying about international trade, how international trade happens, everything. And then we will be studying about how issues like pollution impact the economy, impact the people. So this is the index. Then we will be talking about population. First chapter is your population, distribution, density, growth, and composition. On the left hand side of your book, there is a gray box which talks about School Bhuvan. Now, what is School Bhuvan? School Bhuvan एक portal है, online आपको Google पे मिल जाएगा.
जिसका URL भी आपको दिया हुआ है इस बुक में. इट इज़ अ वेरी इंटरेक्टिव पोर्टल. आई वुड नो रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ विजिट दिस पोर्टल. आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के मैप्स हैं. आप उन मैप्स को बहुत जूम इन करके जूम आउट करके बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. बहुत इंटरेक्टिव रहेगा. ये इंडिया में ही इंडियन हमने ही बनाया है. NCERT और इसरो की कोलैबोरेशन के साथ बना है ये. सो प्लीज़ आप इसको देखिए. इट्स अ गुड थिंग एंड यू कैन गिव अ वेरी गुड आउटपुट रिलेटेड टू इट. नाउ नेक्स्ट इज पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन. इन चारों वर्ड्स का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसे बटी हुई है. एंड डेंसिटी मतलब कहाँ ज़्यादा है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, कहाँ बहुत बड़ी जगह है पर लोग रहने वाले कम है. ग्रोथ मतलब ऐसी कौन सी जगहें हैं जहाँ पे पहले कम लोग रहते थे, धीरे धीरे कर अब जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कर बढ़ती जा रही है. देन अबाउट द कंपोजिशन मतलब बड़े बूढ़े ज़्यादा रह रहे हैं, मेल ज़्यादा हैं, फीमेल ज़्यादा है, सेक्स रेशियो, ऑल दीज थिंग वुड बी डीलिंग विद दिस इन पर्टिकुलरली विद इंडिया. कंपोजिशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी. लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, ऑक्यूपेशन के हिसाब से कैसे डिवीजन होगा, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे. नाउ हम सबको पता है हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है और अभी सेंसस होने वाला है. जब भी सेंसस होगा तब हमको एक्चुअल अब रिसेंट डेटा क्या है वो पता चलेगा. बट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडिया का पॉपुलेशन इज़ 1210 मिलियन एंड दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना फॉलोड. बट अगर हम देखें तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है टोटल नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन को मिला दिया जाएगा तब जाकर हमारे इंडिया का पॉपुलेशन बनेगा. इतना सारे लोग हमारी कंट्री में रहते हैं. अब ओवर पॉपुलेशन एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है. एक एडवांटेज कैसे है? हमारे पास ज़्यादा वर्कफोर्स होती है. ज़्यादा वर्कफोर्स होने के कारण हम ज़्यादा चीज़ें डेवलपमेंट, लोग लेबर इंटेंसिव काम कर सकते हैं, लोगों को यूज़ कर सकते हैं अपनी डेवलपमेंट में, अपनी ग्रोथ के लिए. और डिसएडवांटेज कैसे है? हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं, हमारे पास लिमिटेड पानी है, लिमिटेड जगह, एरिया नहीं भर सकता है ना. अभी एक घर में 10 लोग रहते हों या 2 लोग रहते हों, घर का एरिया उतना ही रहेगा. 10 लोग रहेंगे तो पानी की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, खाने की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी. सो पीपल पे डिपेंड करता है. बट रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वो एक नंबर के बियॉन्ड नहीं बढ़ाए जा सकते हैं. तो इसी की वजह से बहुत सी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं. जैसे कि हमारी कंट्री में सेक्स रेशियो का प्रॉब्लम है. लड़कियां पैदा होती हैं तो फीमेल इन्फेंटिसाइड, उनको मार दिया जाता है. हमारी कंट्री में पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, गरीबी बहुत ज़्यादा है. क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन है, सबका ध्यान रखना, सबको मैनेज करना इज़ नॉट पॉसिबल. और नॉट पॉसिबल नहीं बोलेंगे, इट इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट. तो वही इस चैप्टर में हम डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे. हमें पॉपुलेशन का डेटा कहाँ से मिलता है? सेंसस होते हैं, हर 10 साल में इंडिया में सेंसस होता है, जिसके कारण हमें जिसके थ्रू हमें अपनी पॉपुलेशन का डेटा मिलता है. ड्यू टू कोविड अभी सेंसस नहीं हो पाया, जो 2021 में एक्चुअली में होना चाहिए था, 2020 में ही शुरू हो जाना चाहिए था. बट it could not happen because of COVID. So let's see ये कब होता है. Our first census was first census took place in 1872 but लेकिन that was not a full fledged census. एक particular छोटे एरिया का लिया गया था जो एक पूरी तरीके से सेंसस शुरू हुआ. It started in the year 1881. So your first census was conducted in 1881. Now the first topic of this chapter is distribution of population. पीछे एक ये जो मैप आ रहा है साइड में, आप इस मैप में देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग एरिया में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल जो ये गंगा का, हमने लास्ट ईयर गंगा का कोर्स पढ़ा था कि किस तरह से गंगा जो है उत्तराखंड से निकलती हुई पूरा यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल को कवर करती हुई जाती है. तो गंगा का ये जो रीजन है, यहाँ पे और भी उसके साथ बहुत सारी उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज आके मिलती हैं. ये रीजन बहुत ज़्यादा हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है. तो क्योंकि यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी है, प्लेन एरिया है और आसानी से मिनरल्स वगैरह, मेटल्स वगैरह सब चीज़ें ईजीली हो रही हैं. दैट इज़ द रीजन. तो
पैटर्न्स ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है स्पेस, अलग अलग जगह के हिसाब से पॉपुलेशन बटी हुई होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सो इट इज़ क्लियर कि बहुत ज़्यादा अनइवन है, हाईली अनइवन। अनइवन का मतलब होता है जैसे आप बोलते हैं अनइवन रोड, अनइवन रोड मतलब खुदरी रोड है, लेवल नहीं है, तो बहुत अनइवन है। कहीं कहीं पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, कहीं कहीं पे पॉपुलेशन बहुत कम है, कहीं कहीं पे बहुत मिनिमम है, कहीं एकदम बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। द हाईएस्ट परसेंटेज, जो बहुत ज़्यादा लोग अगर देखे जाए तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, इन आर स्टेट, एंड फॉलोड बाय इसके बाद महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में। एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे नोट करने के लिए बोलूँगी, दैट इज़ योर सीक्वेंस, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन किस हिसाब से है, नंबर 1 पे कौन है, 2 पे कौन है, 3 पे कौन है, इस तरह से। नहीं भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपकी बुक के एंड में कुछ अपेंडिक्स दिए हुए हैं, अपेंडिक्सेस, तो उसमें से आप देखकर ये पूरा डेटा निकाल सकते हैं। बट यू शुड रिमेंबर एटलीस्ट टॉप 3 एंड बॉटम 3 स्टेट्स ऑफ योर कंट्री जिनमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड है। सो यूपी, महाराष्ट्र, फॉलोड बाय बिहार, एंड देन वेस्ट बंगाल। सो हम अगर बात करें तो कुछ 10 स्टेट्स, हमारी कंट्री की 10 स्टेट, जो कि आपकी यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान और गुजरात का स्टेट्स मिलकर हमारी कंट्री की 76% ऑफ पॉपुलेशन को बनाती हैं। और मान लो 28 स्टेट्स में से 10 स्टेट की पॉपुलेशन 76 है और बची हुई 18 स्टेट्स में, आप ऐसा इस तरह से अगर देखो कि अगर हमारी पूरी इंडिया में 100 लोग रहते हैं तो 10 स्टेट में 76 लोग रहते हैं और बची हुई 18 स्टेट्स में बस 24 लोग रहते हैं। सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईली अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। और कुछ कुछ स्टेट्स जैसे कि आपकी जम्मू कश्मीर, यहाँ पे सिर्फ 1.01% पॉपुलेशन रहती है, मतलब 1/4 लोग रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सबसे लीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे कम लोग यहाँ रहते हैं, दैट इज़ 0.11%। फिर उत्तराखंड में 0.84 है। तो ये जोग्राफिकल एरियाज। अब आप देखो जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आपका ये उत्तराखंड, यहाँ पे कुछ कॉमन है। ये सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे रहना इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर पीपल, रिसोर्सेज नहीं मिलते, ट्रेड करना इधर उधर से डिफिकल्ट हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश एकदम उधर एक्सट्रीम ईस्टर्न कॉर्नर पे है, जम्मू कश्मीर एकदम नॉर्दर्न साइड में पड़ जाता है, उत्तराखंड में बहुत पहाड़ी इलाके हैं, बहुत ज़्यादा पहाड़ वहाड़ हैं, और इट इज़ अगेन क्लोजर टू नेपाल। जम्मू कश्मीर के और भी रीजंस हैं, वहाँ पर टेररिज्म, मिलिटेंसी, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। अरुणाचल प्रदेश का भी सेम है, वी आर फाइटिंग विद चाइना फॉर इट। सो इंटरनल डिस्टर्बेंस कि लोगों का क्या है, और एक्सटर्नल फोर्सेस की ज्योग्राफी नहीं है, सर्दी है, ये दोनों चीज़ें मिलकर यहाँ पे पॉपुलेशन की कमी या ज़्यादा होने का इंडिकेशन करती है। ये जो अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, ये सजेस्ट करता है क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड फिजिकल सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। मतलब पॉपुलेशन के बीच में फिजिकल कंडीशन, सोशल कंडीशंस और इकोनॉमिक कंडीशंस, हिस्टोरिकल कंडीशंस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में कम पॉपुलेशन होने के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण, वहाँ का क्लाइमेट इज़ नॉट सूटेबल। दूसरा कारण, वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के मुस्लिम्स, हिंदू, कश्मीरी, रोहिंग्यास, बहुत डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ रहते हैं। थर्ड इज़ चाइना फ्रॉम दी राइट एंड पाकिस्तान फ्रॉम दी लेफ्ट, दोनों उस पर किसी ना किसी तरीके से उसको हर बार डोमिनेट, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। चौथा, इंडियन गवर्नमेंट ने जब से एब्रोगेशन हुआ है 370 का, हम भी वहाँ पे बहुत टाइम से कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो नहीं हो पा रहा है। और हमारी साइड से भी इतनी डेवलप्ड नहीं है, इकोनॉमी उनकी इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि हमेशा लड़ाई का ही माहौल रहता है। सो बहुत सारे फैक्टर्स मिलाकर पॉपुलेशन को इम्पैक्ट डालते हैं। कुछ फैक्टर्स हमने हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक में भी देखे थे, अवेलेबिलिटी, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखे थे हमने, कि किस तरह से पानी का होना, अच्छी सॉइल का होना, अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशंस का होना, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं पॉपुलेशन के ज़्यादा होने को या फिर कम होने को।
सो क्लाइमेट डिफिकल्ट, टेरेन मतलब पहाड़ी इलाका, प्लेन है, प्लेट्यू है, पानी वानी बहता है, सो ऑल दीज थिंग्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। पानी अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करती हैं। कॉन्सिक्वेंटली अगर हम देखें तो हमारे जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आपका ये प्लेन एरियाज जो है, पार्ट्स ऑफ एमपी और उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, थोड़ा सा आगे वाला, नॉट पीछे वाला पार्ट ऑफ लाइक जयपुर और ये बीकानेर, राजस्थान, ये सारे जो इलाके हैं जो प्लेन एरियाज हैं, यहाँ पर आपको जनरली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा दिखती है। डेल्टाइक रीजन्स में पॉपुलेशन ज़्यादा है, और कोस्टल प्लेन्स यानी कि जो हमारे नीचे वाला जो कोस्टल बाउंड्री है उसके साइड में भी हमको पॉपुलेशन बहुत हाई अमाउंट में देखने को मिलती है। कंपेयर करें तो जो हमारी साउथ इंडियन, हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और जो कुछ वेस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम, धीरे धीरे, पर लेकिन ये तो थे फिजिकल फीचर्स के कारण, फिजिकल रीजंस के कारण ये डिफरेंस था कि माउंटेन जो है, डिफिकल्ट अगर टेरेन है तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। बट धीरे धीरे, जैसे कि राजस्थान में डेजर्ट है, मेजर पार्ट इज डेजर्ट, पानी की कमी होने के कारण। पर अभी क्या हुआ, जब हमने इंदिरा गांधी कैनाल बना दिया, वहाँ पर पानी धीरे धीरे करके अच्छा इरिगेशन सिस्टम अगर वहाँ मिल रहा है, तो वहाँ की पॉपुलेशन भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। झारखंड में हमको एक्सटेंसिव मिनरल्स मिलता है, ऑलमोस्ट आप अगर झारखंड में रहोगे आपको हर तरीके का मिनरल मिल जाएगा झारखंड में, चाहे वो आयरन हो, मैंगनीज, कॉपर, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन झारखंड। मोस्टली, नॉट एवरीथिंग, मोस्टली सारे मिनरल्स वहाँ पे मिल जाते हैं। so, उस वजह से वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। और ट्रांसपोर्ट की बेटर होने के कारण जगह जगह में कुछ एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, इकोनॉमिक फीचर्स, जिसके कारण पॉपुलेशन में चेंज देखने को मिलता है। तो कुछ एरियाज जो कि बहुत हाईली पॉपुलेटेड होते हैं और कुछ एरियाज जो बहुत थिनली पॉपुलेटेड, मतलब जहाँ पे काफ़ी कम पॉपुलेशन रहती है। अगर हम कुछ सोशो इकोनॉमिक हिस्टोरिकल फैक्टर्स की बात करें, हिस्ट्री में अगर हम जाएं, तो कुछ ऐसे रीजन्स, कुछ ऐसे कारण, कुछ ऐसे रीजन्स जिनकी वजह से हमारी जो ये जोग्राफी थी उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। एंड दीज रीजन्स आर योर सेटल्ड एग्रीकल्चर। हम हमेशा से, जब से इंसान पैदा हुआ था तब से वो खेती बाड़ी नहीं कर रहा है। न्यूलिथिक पीरियड, हिस्ट्री में बहुत सारे पीरियड्स में डिवाइडेड होती है हिस्ट्री, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक। सो जो न्यूलिथिक पीरियड था, इस टाइम पे हमने एग्रीकल्चर का पढ़ना शुरू किया था। ये चीज़ आपने अपनी 11th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ी होगी प्रॉब्ली। बट इन द न्यूलिथिक पीरियड वी स्टार्टेड डूइंग सेटल्ड एग्रीकल्चर, मतलब हमने एक जगह पे रुके और खेती बाड़ी करना शुरू कर। और जब हमने एक जगह पे रुकना शुरू कर दिया, तब जाकर हमने अपनी पॉपुलेशन, अभी क्या हो रहा है, आपको कंटिन्यूसली मूव करते रहना है। मैं आपको बोलूँ आप एक जगह पे भी नहीं रुक सकते हो, आपको पूरे इंडिया का टूर करना है। आप कोशिश करोगे आप अपने साथ कम से कम सामान लेके जाओ, क्योंकि वो आपको ही संभालना है, तो और कम से कम लोग लेके जाओ ताकि सबकी मैनेजमेंट ना करनी पड़े। बट अगर आपको बोला जाए कि ठीक है अब तुम दिल्ली में जाकर सेटल हो सकते हो, धीरे धीरे करके यू विल स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स, यू विल सेटल, यू विल मेक योर फैमिली। तो क्या हुआ, जब सेटल्ड एग्रीकल्चर शुरू हो गया, आफ्टर दैट सेटल्ड लाइफ शुरू हुआ, पॉपुलेशन का बढ़ना उसके बाद शुरू। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर का ग्रोथ भी होना शुरू हुआ। जब हम रह रहे थे, खेती करी, पहले बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं मिल रहा था, धीरे धीरे करके जब आउटपुट मिलने लगा तो उनको पता चला कि पहले 5 लोगों के लिए 10 किलो मिल रहा था, अब 5 लोगों के लिए 20 किलो मिल रहा है। तो मतलब अब हम लोग बढ़ा सकते हैं, अब हम 5 की जगह 10 हो सकते हैं, तब भी हम सबका पेट भर जाए। सो दैट इज हाउ द इंक्रीजिंग द एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन स्टार्ट। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग गया, धीरे धीरे करके अर्बनाइजेशन हुआ, एंड टुडे वी आर हेयर, मोस्ट ऑफ द सिटीज आर डेवलपिंग, हर चीज़ हमारे सामने ही हो रही है। हमने एक चीज़ और नोटिस करी कि जो रीजन्स जो रिवर एरियाज में, कोस्टल एरियाज में आसपास होते हैं, यहाँ पे जनरली जो मैंने आपको बहुत बार क्लास में बताया, दैट इज और हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, इट डेवलप्ड अराउंड इंडस वाटर, इंडस रिवर के आसपास डेवलप हुई। रीज़न क्या था, क्योंकि वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी थी। तो हर किसी को, हम खाने के बिना रह सकते हैं, बट विदाउट वाटर सस्टेनेंस इज नॉट पॉसिबल। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज की यूज, जैसे कि लैंड एंड वाटर, इन दीज रीजन्स हैव शोन अ साइन ऑफ डिग्रेडेशन। धीरे धीरे करके जो आपका लैंड और वाटर धीरे धीरे डिग्रेड होने लग गया। जैसे जैसे पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ेगा, आप एक जगह पे रह रहे हो, वहाँ पे आपके पास 10 किलो पानी है, 10 लीटर्स ऑफ वाटर, 10 लीटर्स ऑफ वाटर है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड है। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप
कि पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। पहले आप एक जने थे वो 10 लीटर ऑफ पानी को कंज्यूम करने के लिए, अभी आप 10 लोग हो गए हो, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, क्वालिटी डिग्रेड होने लग जाएगी। अब आप 10 लीटर वाटर से इनफ नहीं होगा, यू विल डिमांड 30 लीटर्स ऑफ वाटर और 40 लीटर्स ऑफ वाटर, एंड दैट 40 लीटर्स ऑफ वाटर जितना ज़्यादा आप एक्सट्रैक्शन करोगे उतना क्वालिटी विल बी impacted. So the high concentration of population remains high. कंसनट्रेशन ऑफ जो पॉपुलेशन है वो हाई रहता है, क्योंकि हिस्ट्री को अगर हम देखें, ह्यूमन सेटलमेंट एंड एवरीथिंग। ऑन द अदर हैंड जो अर्बन रीजन्स हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑफिसेज हैं। गुड़गांव इज़ ऑल्सो इन वन ऑफ दीज। अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, और सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होने का होता है रूरल अर्बन माइग्रेशन, विच मीन्स जो लोग हैं वो छोटी जगहों से, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आके रहने लगते हैं, एंड दे ट्राई टू वहाँ की, और इस वजह से जब वो माइग्रेट करते हैं तो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया की जहाँ से वो आए हैं उस जगह की पॉपुलेशन कम हो जाती है, और जहाँ आके सेटल कर रहे हैं वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को हम कल पढ़ेंगे। सो इन केस यू हैव एनी डाउट्स, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल बी गिविंग यू 2 क्वेश्चंस एंड 2 MCQs टू सॉल्व, एंड प्लीज़ उनका आंसर करिएगा। थैंक यू।